نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے، اور آج ہی ہم انشاءاللہ اپنا چھٹا پارہ جو ہے وہ بھی شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں جو کہ آیت نمبر 142 سے لے کر 147 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں یا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ در حقیقت وہ خود دھوکے میں شکار ہیں، اور جب ان کی حالت یہ ہے ان منافقوں کی کہ جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف ریاکاری کے لیے لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور یاد الہی تو، ذکر الہی تو یوں ہی برائے نام سا ہی کرتے ہیں۔ وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف یعنی کافروں کی طرف، اور نہ ہی صحیح طور پر ان کی طرف یعنی مومنوں کی طرف، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائے گا۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ ناممکن ہے تو ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پالے۔ ہاں، جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بڑا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا جس میں منافقین کی کچھ باتیں یا منافقین کا کچھ طرز عمل جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور بطور خاص اس میں نماز میں کاہلی سستی اور صرف دکھاوا اور جلدی جلدی سے نماز پڑھنا اور شیطان کی طرح ٹھونگے مارنا، اس طرح سے نماز کو ادا کرنا، گویا کہ یہ بھی منافقت ہے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ تو گویا ہمیں کل کے سبق میں بھی بہت سارے اہم جو نکات ہیں اس میں نماز کی طرف توجہ اور نماز میں اٹینٹیو ہو کر بڑی تیاری کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرنا، اس کی بھی اہمیت جو ہے اس کا ہمیں اندازہ دلاتی ہیں یہ آیات، کہ یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ جو نماز کی طرف صحیح معنوں میں دلی طور پر توجہ نہیں دیتے۔ بڑھتے ہیں آج ہمارا اگلا سبق آج کا، آیت نمبر 148 سے آنورڈ۔
आयत नंबर 148 से ऑनवर्ड भी मुनाफिकीन के बारे में ही है। लेकिन ये आम आयात भी हैं जो आम तौर पर हर जगह पर इम्प्लीमेंट होती हैं। लिहाजा ये अपनी जगह पर एक ख़ास अहमियत जो है वो भी रखती हैं। और यकीनन हमारे लिए ख़ास तवज्जो चाहिए, या हमारे लिए ख़ास तवज्जो दरकार है कि हम इन मामलात में अपने नफ्स को, अपने आप को, अपनी शख्सियत को, अपने घर वालों को, अपने इर्द गिर्द अपने चाहने वालों को टटोलते रहें कि कहीं कोई ऐसा मामला हमारे अंदर तो मौजूद नहीं। क्योंकि ये सूरत निसा जो है वो मुआशरती मामलात जो हैं उन्हीं को मेनली टारगेट करके हमें बहुत सारी नसीहत जो है वो देती है। तो बस बढ़ते हैं हम आगे। आयत नंबर 148, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला युहिब्बुल्लाहु, नहीं पसंद करता अल्लाह। हुब जो है वो मोहब्बत से है, नहीं मोहब्बत करता अल्लाह ताला, या नहीं पसंद करता अल्लाह ताला किस बात को? अल जहरा, एलानिया, अलल एलान, बिस्सुई, बुरी बात को, गुनाह को, बुराई को, मिनल कौली, उसको कहना, उसको उसको फैलाना या उसकी तशहीर करना। अल्लाह ताला बुराई को एलानिया तौर पर सरेआम फैलाना, उसका चर्चा करना, उसकी तशहीर करना, उसको उसको सरेआम लोगों के तक पहुंचाना, इस बात को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। अब ये आयत जो है, ये आयत भी हमारे मुआशरती मामलात जो है उसमें एक बहुत ही एक अहम पॉइंट जो है वो रखती है। यकीनन बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू जो हैं वो निकलते हैं। मैं तो सबसे पहले अपनी तरफ से माजरत कि आजकल कुछ मामलात ऐसे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करता, कुछ सुस्ती भी अपनी तरफ से होती है, तो मेरे लिए भी दुआ करें। क्योंकि ये आयत ऐसी हैं कि जब इनके ऊपर आप थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करें और मुख्तलिफ पहलू जो हैं उनको तलाश करने की कोशिश करें, तो ऐसा लगता है कि जैसा ये बहुत सारे मुख्तलिफ मामलात की तरफ हमें इशारा करती हैं। चाहे वो इनफरादी नौयत के, अपनी शख्सी नौयत के हैं, चाहे हमारे फैमिली के अपने मुतलका हैं, चाहे पूरे ओवरऑल मुआशरे के मुतलका हैं। तो बहुत सारे मुख्तलिफ मौज़ूआत जो हैं वो इन आयात के तहत कवर होते हैं। तो बहरहाल इस आयत को अगर हम उस वक़्त के हालात और वाक़यात की तरफ देखें, तो पहले मक्का में तो मुसलमानों के साथ जुल्म सितम होता रहा। इनफरादी एतबार से भी, इज्तमाही तौर पर भी मुसलमानों की बतौर मुसलमान फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाकी जितना तज़हीक होती रही उनकी, उनके साथ मुख्तलिफ तरह से जुल्म और ज़्यादती होती रही। और फिर जब मदीना में हिजरत हुई तो उसके बाद फिर उस जुल्म और ज़्यादती, उसकी नौयत जो है वो तब्दील होगी। काफिर जो है वहाँ पर मौजूद थे, वो भी कुछ ना कुछ मतलब रोल प्ले करते, लेकिन यहाँ पर मुनाफिक और बतौर ख़ास यहूदी और ईसाई वो ठट्ठे उड़ाते और मुसलमानों का मजाक करते और उनके खिलाफ बातें करते या इस तरह से, और वो ये बातें जो हैं उनको टॉन्ट करती। तो उस तौर पर भी उस उन हालात के एतबार से अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं कि ये जो बातें करते हैं लोग, उनको अलल ऐलान जो है वो फैलाया जाए, उनको उसकी तशहीर की जाए। या ओपन आयत जो है, या आम आयत के तौर पर ये ज़्यादा पुरअसर आयत है कि आम हालात में एक आदमी जो है, कोई भी आदमी, चाहे वो इनफरादी हैसियत से है, चाहे वो अपने ख़ानदान में उसकी जो पोजीशन है, चाहे मुआशरे में किसी भी जगह पर मौजूद है, अ, उसके लिए मुझे मुनासिब नहीं कि वो किसी भी बुराई को एलानिया तौर पर उसकी तशहीर करे या उसको दूसरों तक पहुंचाए या उसको मुआशरे में फैलाने का सबब बने। और ये बुराई जो है इसकी उसकी नोयत भी बहुत मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। उसमें ज़्यादतियाँ भी हो सकती हैं, इसमें गुनाह के काम भी हो सकते हैं, इसमें बुरी आदत भी हो सकती हैं। और ये बुराई जो है वो
एक इंसान की, एक आदमी की अपनी बुराई भी कोई हो सकती है, और किसी दूसरे से मुतल्लक बुराई भी हो सकती है। खुद वो ऐसा कोई काम करता है जिसको फिर वो तशहीर करता है और दूसरों तक पहुंचाता है कि देखो मैंने इस तरह से किया। बहुत सारे मैटर्स होते हैं पाकिस्तान में अगर देखें या मुख्तलिफ जगहों पर, तो अक्सर लोग एक दूसरे को अपनी करप्शन और बदनवानी का दरमियाने रास्ते जो है, ये ऐसा रास्ता जो है वो अगर निकल जाए तो देखो कितनी आसानी से तुम्हारे काम होते हैं। तो बेशुमार इस तरह के अपनी खलवत के कुछ बहुत सारे गुनाह जो हैं उसके बारे में भी ये हो सकता है कि मतलब मीडिया पे आजकल जो कुछ चल रहा है उसको फिर तशहीर करना और दूसरों तक पहुंचाना, और फिर दूसरों के गुनाह, दूसरे जो कुछ जुल्म और ज्यादती करते हैं या दूसरे कोई बुराई का काम करते हैं तो उनको कोट करते हुए कि देखो तुम फलां बंदा जो है वो इस तरह से करता है, और सरेआम उसको फैलाना। इसकी मजीद तशरीह जो है वो भी इसी आयत में, अगले हिस्से में या अगली आयत में हमें मिल जाएगी। इसके इसका दूसरा पहलू जो है, दोबारा एक तो ये है कि गुनाह बुराइयां बहुत सारी मुख्तलिफ इकसाम की, बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों की तरफ से और बहुत सारे मुख्तलिफ अंदाज में उसको दूसरों तक पहुंचाना और फैलाना, और माशरे में उसकी एक एक बड़ी वजह यह है कि अगर किसी बुराई को मतलब आम किया जाए या उसके बारे में मालूमात जो है वो आम पब्लिश कर दी जाए या पब्लिक में उसको सरेआम जो है वो बयान किया जाए, तो उस बुराई को कम करने के बजाय उसका फैलना और उसका मुआशरे के अंदर सरायत करना, उसके उसके चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, बल्कि उसी के ही चांसेस होते हैं। जिसको नहीं पता कि ये कोई इस तरह से भी बुराई है या ये भी कोई बुरा काम जो है वो इस अंदाज से भी हो सकता है या इस तरीके से वो कोई लज्जत जो है वो हासिल कर सकता है किसी बुराई की या किसी किसी इस तरह से ज्यादती की या किसी गुनाह की। तो जिसको नहीं पता उसको भी पता चलता है, और जिसको पता है वो फिर और भी डटाई के साथ शेर बन जाता है कि मैं कर रहा हूँ तो दूसरा भी तो कोई कर रहा है। तो लिहाजा इनफरादी नोयत में और इज्तमाही नोयत में गाली गलौच भी इसमें आती है, चुगली गीबत, ख्वाम खा किसी को बदवाएं देना और बदजुबानी करना, फिस्क और फजूर, और बेशुमार इस तरह के हैं जो कि छोटे छोटे भी हो सकते हैं और बड़े बड़े भी हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला किसी भी तरह की बुराई को आम करने या आम उसको अलल ऐलान उसको तशहीर करने की इजाज़त नहीं देता, उसको पसंद नहीं करता, और ऐसे बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता है। दो तीन अगर रिवायात हम देखें तो हमें इस मौजू का जो एक लुब्बे लुबाब है उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह का ये मौजू है और कितना वसअत रखने वाला ये मौजू है। सबसे पहले अगर सूरह नूर की आयत नंबर 19 को हम देखें तो उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक जो लोग पसंद करते हैं कि उन लोगों में बेहयाई फैले जो ईमान लाए हैं, यानी बेशक जो लोग मोमिनों में बेहयाई को पसंद करते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह को सही मानों में इल्म है कि किस किस तरह से ये लोग जो है वो बुराई करते हैं और फिर दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो जो ये पसंद करे कि मुसलमानों में, मोमिनों में भलाई भलाई सॉरी बुराई फैले, बेहयाई फैले, तो उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। सही बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान के ऐब की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब की पर्दापोशी फरमाएगा। यानी आयत का ये पहला हिस्सा जो है उसके दो पहलू हैं। एक ये है कि उसकी पर्दापोशी करना, दूसरा है कि उसको फैलाने से रोकना या उसको दूसरों तक ना पहुंचाना। दोनों जो है ये तकरीबन एक ही बात लगती है, लेकिन मुख्तलिफ हालात में दोनों अलग अलग बातें भी हो सकती हैं। तो बहरहाल जिस शख्स ने मुसलमानों के ऐब की पर्दापोशी की दुनिया की ज़िंदगी में, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब की पर्दापोशी फरमाएगा। और उसकी एक बेहतरीन मिसाल जो है, जो हमें इस अल्लाह ताला की पर्दापोशी की, वो भी हमें मिलती है बुखारी की रिवायत में। ये भी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ही से रिवायत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े हशर तुम में से एक शख्स अपने रब से बहुत करीब हो जाएगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसे ढांप लेगा या उसके अपने करीब करके अपने बाजू में ले लेगा, और यानी उस पर रहम करेगा। और फिर अल्लाह ताला उससे फरमाएगा कि तूने फलां फलां काम किया था। उसको कोई उसका जुर्म जो है अल्लाह ताला छोटा सा बताएगा कि तूने फलां फलां काम किया था। वो शख्स इकरार करेगा, क्योंकि वहाँ पर इकरार के अलावा कोई और
सूरत ही नहीं हो सकती। बहरहाल वो शख्स इकरार करेगा, फिर अल्लाह ताला फरमाएगा तूने फलां फलां काम भी किया था, यानी उससे भी बड़ा कोई और उसका जुर्म अल्लाह ताला बताएगा, वो कहेगा हाँ। अलगर्ज वो अपने हर हर जुर्म का इकरार कर लेगा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने दुनिया में तेरे गुनाहों पर पर्दा डाल दिया था और आज मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। इन दोनों हदीसों को अगर हम एक साथ रख कर देखें, तो जिसने दुनिया की जिंदगी में दूसरों अपने और दूसरों के ऐबों पर पर्दा डाला, अपने नंबर एक तो बुराई जो है वो उसकी किसी सूरत पर कोई इजाज़त नहीं है, ये अपने जहनों में रखना चाहिए कि कोई ये ना समझे कि हाँ बुराई कर लें लेकिन दूसरों तक ना पहुंचाए। बुराई किसी भी तरह की, किसी भी तरह का गुनाह, चाहे खलवत का है चाहे जाहिर है, उसकी कहीं पर भी किसी भी तौर पर इजाज़त मुमकिन नहीं है। हाँ, गलती से कोई कोई शैतान के बहकावे में आकर ईमान जो है घटता बढ़ता है, कमज़ोर होता है, ताकतवर होता है, तो इंसान जो है वो ख़ताओं का पुतला भी है और कमज़ोरियों का मजमूआ भी है। तो मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ मामलात में कोई ऊंच नीच होती है, तो लिहाजा किसी भी ऐसी सूरत में, चाहे वो अपनी हो चाहे वो दूसरी की हो, उसको उसके ऊपर पर्दा डालेगा जो दुनिया की ज़िंदगी में, और उसको फैलने से रोकेगा। उसके लिए अल्लाह ताला किस कदर आखिरत में उसके ऊपर रहमत करेगा कि वो उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा, लेकिन उसको इकरार करा लेगा पहले। इसी तरह से सही बुखारी और मुस्लिम की एक और रिवायत अगर हम देखें, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत को माफ़ कर दिया जाएगा सिवाय उन लोगों के जो ज़ाहिर करने वाले हैं, और ज़ाहिर करना ये है कि आदमी रात को कोई बुरा अमल करे, फिर जब सुबह हो तो अगरचे उसके उसने उसकी बुराई पर पर्दा डाल दिया, यानी अल्लाह ने अगरचे उसके बुराई पर पर्दा डाल दिया हो, लेकिन वो कहे कि ए फलां मैंने रात को ऐसा ऐसा किया। अब अल्लाह ताला ने तो उस पर पर्दा डाल दिया था, लेकिन उसने अपने ऐब से अल्लाह का पर्दा खोल दिया। यानी जो खुद जो है वो रात को उसने या ढके छुपे अल्फाज में अंदाज में छुप छुपा कर किसी ने कोई बुरा काम किया, और फिर अल्लाह ताला ने तो उसके ऊपर पर्दा डाल दिया, लेकिन वो अपने उस बुराई की खुद ही तशहीर करने पर लग गया, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे बंदे को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। जिसके अलावा उम्मत को, सारी उम्मत को जो जाहिर मतलब माफ़ जो है वो कर देगा। तो लिहाजा चाहे वो अपने निस्बत से हो चाहे दूसरे की निस्बत से हो, किसी की ऐप की पर्दा पोशी करना जो है वो हमारे लिए एक अहमियत रखनी चाहिए, और उसको फैलाना और उसको दूसरों तक पहुंचाना अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करता, और ऐसे बंदे को अल्लाह ताला माफ़ भी नहीं करेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे मुख्तलिफ नौइयत के गुनाह जो है वो आ सकते हैं। हमारी अपनी ज़ात से मुतल्लिक़ बहुत सारे गुनाह जुड़े होते हैं, जिसमें ऐसा तज़किरा हुआ कुछ ऐसी बातें जो हैं जो दूसरों तक पहुंचाना, कोई सोशल मीडिया का दौर है या दीगर बहुत सारे मामलात हैं। आजकल अगर हम देखें बंद कमरों में बैठकर किस किस तरह से प्लान किए जाते हैं कि किस तरह से करप्शन की जाए, किस तरह से किसी के साथ जुल्म और ज्यादती की जाए, किस तरह से किसी से बदला लिया जाए, और फिर उसको दूसरों तक भी पहुंचाया जाता है। और फिर जब इस तरह के काम करता है तो वो फिर अपने आप को बड़ा शेर साबित करने की कोशिश करता है कि मैंने तो ये कर दिया और वो कर दिया। दर हकीकत वो अपने जुल्म और ज्यादती को दूसरों तक थोपता है और फिर उसकी तशहीर करता है। बदनवानी और करप्शन और बेहयाई के बेशुमार रास्ते आज खुले हैं जो मकबूल होते चल रहे हैं, और उसकी मकबूलियत की वजह यही है कि उनको ढांकने की बजाय, उनको छुपाने की बजाय, उनको ख़त्म करने की बजाय उसकी तशहीर की जाती है, और उसको दूसरों तक फैलाया जाता है ताकि दूसरे दूसरे भी उसकी तरफ रागब हों। तो लिहाजा अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं कि किसी भी तरह की बुराई को जाहिर किया जाए, उसको तशहीर किया जाए, उसको फैलाया जाए। आपसे दरख्वास्त है कि इस मौजू के ऊपर आप रिसर्च कर ज़रूर करें। अपना जो जहन है, अपना जो दिमाग है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, अपने अपने ख़ानदान के या अपने माशरे के हालात जो हैं उनको ज़रूर टटोलें और देखें कि किस किस तरह से पहलू जो हैं वो हमारे सामने नज़र आते हैं, जो इन आयात के तहत हमें बहुत सारी रहनुमाइयाँ अता करते हैं। बढ़ते हैं आगे आयत के अगले हिस्से की तरफ। पहला हिस्सा है कि अल्लाह ताला किसी बुराई को एलानिया तौर पर पेश करना उसको पसंद नहीं करता, इल्ला मगर उसमें एक इस्तिस्ना है, उसमें एक एक्सक्लूजन है। वो क्या है? मन जुलिमा, जिस पर जुल्म किया गया हो, मजलूम जो है उसको इजाजत है कि वह अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकते।
अब इसमें भी बहुत सारी मुख्तलिफ पहलू जो है वो हमें नजर आते हैं कि एक तो किस तरह का जुल्म जो है वो उसके खिलाफ वो आवाज उठा सकता है, और दूसरा किस अंदाज में वो आवाज उठा सकता है, और तीसरा किस जगह पर या किसके सामने वो आवाज उठा सकता है। ये तीनों या इस तरह के और एक दो पॉइंट अगर उसमें जमा कर लें तो ये भी खास अहमियत रखते हैं कि वो बुराई जो है, वो बुराई एक तो मजीद ना फैले, दूसरा उसको रोकने की कोशिश हो, तीसरा वो जो जालिम है वो उस जुल्म करने से बच जाए, और चौथा जो है वो कोई हक अगर है उसका, या कोई ज्यादती जुल्म ज्यादती है तो उसका बदला भी अगर वो ले सकता है तो ले ले। और फिर वो जो जालिम है अगर उसके ऊपर कोई सजा वगैरह है तो जालिम के ऊपर अगर सजा आती है दुनिया की जिंदगी में, तो फिर वो अगली जिंदगी में या बाद के मामलात में उस जालिम के लिए ही बेहतर है। क्योंकि पिछली आयत में हमने देखा था पिछले एक दो सबक में कि गवाही के बारे में कि अगर तुम चाहते हो कि किसी के हक में गवाही दो कि भला हो जाए उसका, तो जरूरी है कि सच्ची गवाही दो, झूठी गवाही मत दो, क्योंकि तुमसे ज्यादा अल्लाह ताला भला करने वाला है हर एक का, तुम का भी और वो जो जालिम है उसका भी। तो इंसान से तो अल्लाह ताला ज्यादा मोहब्बत करता है। बहरहाल ये भी कि मजलूम जो है उसको इजाजत है कि वो मारूफ तरीके से अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकता है। बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं, कुछ कुछ मामलात ऐसे हैं जिनमें अगर कोई अगली आयत में थोड़ा सा मजीद वाज़ेह हो जाएगा कि अगर कोई ऐसा ऐसी ज्यादती कर दी किसी ने, या कोई ऐसा ऐसा ऐसी कोई बात कर दी जिसको कंप्रोमाइज करना या जिसको सहना आपके लिए आसान है या मुमकिन है आपके लिए, या जो आप बर्दाश्त करना आपके लिए मुमकिन है, तो ऐसी बात को बर्दाश्त करके अगर आप उसको माफ़ कर देंगे तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ा एहसान या अल्लाह ताला को पसंदीदा है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनको इग्नोर करना नहीं चाहिए, जिनको इग्नोर करना दर हकीकत वो उस गुनाह को या उस बुराई को और ज़्यादा करता है। बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जैसा करप्शन, बदनवाजी वगैरह, जिस तरह के बेशुमार होते हैं। इसके अलावा अगर हम अपनी फैमिलीज़ में टटोलें, अपनी फैमिलीज़ में या अपने माशरे में इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, तो बेशुमार ऐसी छोटी छोटी बातें नज़र आती हैं जिनको फिर छुपाया जाता है, और जिनके जिनके बारे में मुनासिब इकदामात नहीं किए जाते, जिसकी वजह से वो जुल्म जो है वो रुकता नहीं है, वो ज्यादती रुकती नहीं है बल्कि बढ़ती चली जाती है, और बाद में हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। उसमें एक पॉइंट जो है, बाकी बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो हमारे जहनों में आ सकते हैं अगर हम उसका तज्जिया करने की कोशिश करें, लेकिन एक अहम नुक्ता ये है कि हमारे माशरे में, हमारी फैमिलीज़ में, हमारे इर्द गिर्द बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल जो है वो होता है, उसके ऊपर भी आप ख़ास नज़र रखें। अपने बच्चों के ऊपर ख़ास नज़र रखते हैं, उनकी हालात और उनकी आदत और सकनात, और बच्चों को बेखौफ करें कि अगर उनके साथ कोई इस तरह के जुल्म और ज़्यादती या इस तरह से कोई हरकत हो रही है तो उसका इजहार करें। ये एक बड़ा ही क्रिटिकल मैटर है, जो मुझे लगता था कि नहीं ये कोई ढकी कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन कुछ बातें जो पता चली उससे दिल जो है वो दहल जाता है। ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे मिसालें जो है वो हमें मिलती हैं। बहरहाल यहाँ पर तज़किरा करने का मकसद उसकी तशहीर करना नहीं, बल्कि हमें अपने आप को समझाना कि ये ऐसी बातें जो है इनको रोकना हमारे अंदर मौजूद होती हैं, हमारे माशरे में मौजूद होती हैं। जहाँ तक मुमकिन हो जिसके पास जिस तरह की इस्तात है, अपनी इस्तात के मुताबिक मारूफ तरीके से उसको रोके, उसके सामने मतलब डट जाए, और अगर मुनासिब हो तो उसको मुनासिब अंदाज से किसी ऐसे शख्स तक पहुंचाए जो उस बुराई को या उस तरह के, ये तो सिर्फ मैंने मिसाल जो है वो दी अटेंशन के लिए, अदरवाइज बेशुमार चीज़ें जो हैं वो हमारे मामलात में रोज़मर्रा के मामलात में आती हैं। तो अगर तो खुद से उसको रोक सकता है तो वो रोकने की कोशिश करे, अगर वो खुद से नहीं रोक सकता, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है या कोई ऐसी शख्सियत है जिसके पास वो मैटर लेकर जाना चाहिए ताकि उस जुल्म और ज्यादती को रोका जा सके, उस तक अप्रोच करना है, और फिर आवाज़ बुलंद करना भी हो सकता है सरेआम कि अगर वो जुल्म से नहीं हट रहा और उस जुल्म की वजह से किसी दूसरे के ऊपर भी इस तरह का मजालम होने का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में सरेआम भी फिर लोगों को तंबीह करना या लोगों को
بتانا کہ اس بندے کے بارے میں یا اس گناہ کے بارے میں یا اس معاملے میں ذرا کیئرفل رہنا، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اس طرح سے یہ ظالم ہے، ہو سکتا ہے وہ ظلم سے بچ جائے، رک جائے اور وہ اپنے ظلم کو چھوڑ دے۔ بہرحال بے شمار ایسی باتیں ہیں جو اس معاملے میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی معروف طریقے سے ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں بھی اگر ہم ایک دو روایات دیکھ لیں، اس کی اہمیت اور افادیت کو دیکھنے کے لیے، تو ہمارے لیے آسان ہوگا کہ اس موضوع کو ہم سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے سورۃ شورا کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی راستہ نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے اوپر اگر کوئی کسی نے ظلم کیا تو اس ظلم کا بدلہ صرف اسی حد تک لیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ظلم کا بدلہ لینے میں ظلم کے بدل اس ظلم کرنے سے بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں جتنا ظلم ہوا یا جتنی زیادتی ہوئی اس سے زیادہ بدلہ نہ لے لے، کیونکہ وہ اس سے زیادہ اگر بڑھ گئی بات تو وہ اپنے سر میں آ جائے گی۔ اسی لیے زیادہ اہمیت اس بات کی کہ اگر برداشت کر سکتے ہیں تو معاف کر دینا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنی آدمی، غنی طاقتور آدمی، مالدار آدمی جس کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، غنی آدمی کا حق ادا کرنے میں دیر کرنا یا ٹال مٹول کرنا اس کے لیے سزا اور اس کی آبرو کو حلال کر دیتا ہے۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس مطلب مختلف انداز سے غنی ہے، وہ اس کے پاس مثال کے طور پر وہ بڑا ایک مالدار آدمی ہے، اور اپنی کسی جو ملازم وغیرہ ہے اس کی تنخواہ میں وہ لیٹ کرتا ہے، دیر سویر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اس طرح سے معاملات کرتا ہے، تو یہ اس کے اوپر بھار ہے، اور اس کے خلاف آواز بلند کرنا کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے استطاعت کی ہے، کیا وجہ ہے کہ تم زیادتی کرتے ہو، جبکہ تمہارے پاس تو ہر طرح کے وسائل موجود ہیں۔ تو غنی آدمی اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرے، ٹال مٹول کرے، تو اس کے لیے اس کی سزا اور اس کی آبرو کو حلال کر دیتا ہے، اس کا دوسروں کو حق ادا نہ کرنا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں گالیاں بکنے والے جو کچھ کہتے ہیں، دو لوگ آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو دونوں گالیاں بکنے والے جو کچھ کہتے ہیں اس کا گناہ ان دونوں میں سے ابتدا کرنے والے پر ہے، جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ دونوں کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی، گالی گلوچ شروع ہو گیا، تو اس گالی گلوچ کا جو پورے کا پورا گناہ ہے وہ اس کی طرف ہے یا اس پر ہے جس نے اس گالی گلوچ کو شروع کیا تھا۔ اس کی شرط یہ ہے کہ جو اس گالی کا جواب دینے والا ہے وہ اس گالی سے زیادہ اس کا جواب نہ دے، اس سے کم میں رکھے یا میکسیمم اس تک رکھے۔ تو لہٰذا یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ کہیں ظلم کے بدلے میں مطلب زیادتی نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت آگے جو کہ بڑی اہم ہمارے اندر مطلب موضوع ہے، اسی موضوع کا، یہ ابو داود میں یہ روایت ہے۔ اکثر تفسیروں میں اس روایت کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ اپنے ہمسائے کی شکایت کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور صبر کرو۔ پہلے تو صبر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ وہ پھر آپ کے پاس 2 یا 3 دفعہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنا سامان راستے میں ڈال دو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اپنا سامان جو ہے وہ باہر نکال کر راستے میں پھینک دیا یا ڈال دیا۔ راستے میں جب لوگ گزرتے ہوئے یہ منظر دیکھیں اور سامان کو دیکھیں تو وہ پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا، تو اس نے انہیں اپنے ہمسائے کے بدسلوکی جو ہے اس کے بارے میں بتایا۔ تو لوگوں نے اس ہمسائے کے اوپر لعنت کی، ملامت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے کرے اور ایسے کہ، یعنی لوگ بھی گزرتے اس سے پوچھتے اور اس ہمسائے کو بددعائیں دیتے۔ تو وہ ہمسایہ اس کے پاس آیا اور اس سے بولا کہ اپنے گھر میں واپس چلے جاؤ یا سامان اندر رکھو، آئندہ میری طرف سے کوئی ناپسندیدہ سلوک جو ہے وہ نہیں دیکھو گے۔ یعنی یہ ایک مثال جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہ برائی کو اگر روکنا ہے تو کس انداز میں روکنا ہے۔ ایک تو کہاں تک اس کو لے کر جانا ہے، یا کس کے سامنے آواز بلند کرنی ہے، اس کے سامنے جہاں جہاں سے اس برائی کو ختم کرنے میں یا اس برائی کے بارے میں
कोई मुनासिब हिदायत या रहनुमाई मिल सके, कोई ऐसा फोरम होना चाहिए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता तो अलल ऐलान भी आप कर सकते हैं। हो सकता है कि वो जुल्म करने से बच जाए, हो सकता है कि दूसरे लोग जो हैं वो उसके जुल्म से खबरदार होकर उससे एहतियात कर रखना शुरू कर दें, या हो सकता है कि वो जुल्म करना जो है वो छोड़ दे। तो बेशुमार इसके पहलू जो है वो हमें निकलते हैं। आजकल भी अगर हम देखें कि गीबत और चुगली वगैरह से बचना और पुरअसर अंदाज में आवाज़ उठाना ये ज़रूरी है। यानी किसी ने कोई ज्यादती की है या जुल्म किया है, कि बजाय इसके कि उसके बारे में कोई गीबत की जाए या चुगली की जाए या अंदर अंदर कि फलां ने मेरे साथ ऐसे किया, उसको गाली गलौज बक जाए, बल्कि उसकी बजाय अगर आप उसको माफ़ कर सकते हैं तो माफ़ करें और उससे एहतियात रखें। और अगर आवाज़ उठानी है तो चुगली गीबत या इस तरह की बुराइयों में पड़ने के बजाय पुरअसर अंदाज में एक मुनासिब जगह पर, मुनासिब सतह पर उस आवाज़ को बुलंद करना ज़रूरी है। तो बहरहाल ये दोनों पॉइंट जो है बड़े अहम है इस आज के सबक के, जो हमें अपने इर्द गिर्द होने वाले बहुत सारे मामलात की तरफ इशारा करते हैं और फिर उनसे एहतियात बरतने का भी हमें रास्ता बताते हैं। और फिर अल्लाह ताला के जो मतलब हिसाब किताब है, या अल्लाह के पास हजूर हाजिर होकर जो हमें मामलात पेश आते हैं, उसकी तरफ भी हमें ये रिवायात और आयात जो हैं वो हमें इशारा करती हैं। वकान अल्लाह समीअन अलीमा, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। जो कोई जिस तरह से भी कर रहा है, अल्लाह ताला हर एक का मामला जो है वो खूब अच्छी तरह से ना सिर्फ सुन रहा है बल्कि बखूबी उसको जानता है। इन तुबदू खैरन, अगर तुम जहां तक ये तो बुराई की बात थी, जहां तक अच्छाई की बात है, इन तुबदू खैरन, अगर तुम खुला खुला खुले आम करो कोई भलाई, कोई नेकी का काम, और तुखफूहु, या तुम उस नेकी का काम को छुपा कर करो। तुम चाहे नेकी का काम जो है, बुराई जो है उसको तो रोकना जो है, या उसके उसका ऊपर पर्दा पोशी करना, ये तो ज़रूरी है। इसके मुख्तलिफ पहलू हम देख लिए। हाँ, जो अच्छाई या नेकी का काम जो है या खैर जो है, अगर तुम चाहे तुम खुले आम करो जाहिर करके, चाहे तुम छुपा कर करो, दोनों सूरत में अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल है। लेकिन अगर खुले आम करोगे तो रियाकारी से बचते हुए करोगे, और अगर छुप कर करोगे तो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए करोगे, तो यकीनन अल्लाह ताला जो है उसका अजर जो है वो देने वाला है। औ ताफू अनसूई, या तुम दरगुजर कर दो बुराई से या कसूर से। अगर किसी ने जुल्म और ज्यादती की है, अगर तुम उसको दरगुजर कर दोगे भी, तो ये भी तुम्हारे हक में ज़्यादा अच्छा है। और दरगुजर करने का भी अभी हमने ऑलरेडी इसका तज़किरा कर लिया कि अगर किसी में कोई इस्तात है, किसी ने कोई ज्यादती कर दी, वो और उसके पास कोई इतनी ताकत है या वो इतनी इस्तात रखता है कि वो उसको बर्दाश्त कर सके, तो वो उसको माफ़ कर दे। और ये माफ़ी जो है वो भी उसके सामने उसका इजहार कर दे कि मैं, देखो तुमने ये जुल्म और ज्यादती की है, मैं तुम्हें मतलब ठीक है, मतलब अब जो हो चुका, आइंदा मत करना। मारूफ तरीके से दरगुजर करना जो है वो भी इसमें शामिल है। लेकिन बाज़ दफ़ा जो है जुल्म जो है वो बर्दाश्त से बाहर होता है, या उसके बहुत सारे पहलू और निकलते हैं। तो ऐसी सूरत में मतलब उसको दरगुजर कर सकते हैं, लेकिन उसको इस्लाह करने के लिए, उसकी बेहतरी करने के लिए, जुल्म से बचने के लिए, जुल्म को दूसरों से महफूज करने के लिए, दूसरों को महफूज करने के लिए दूसरे दीगर इकदाम जो है वो भी किए जा सकते हैं। मगर अगर तुम्हारे लिए मुमकिन है तो फिर तुम अगर दरगुजर कर दो, बतौर ख़ास अल्लाह ताला ने तज़किरा किया कि अगर तुम दरगुजर कर सकते हो तो दरगुजर कर दो। यकीनन ये अल्लाह के यहाँ ज़्यादा कदरदानी का बायस बनेगा। फ़ाइन अल्लाह कान अफ़ूवन कदीरा, तो बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और कुदरत वाला है। अगर तुम दरगुजर कर दोगे तो अल्लाह ताला भी माफ़ करने वाला है, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा, उसको भी माफ़ कर देगा। और दरगुजर करने वाला और माफ़ करने वाला तो दर हकीकत अल्लाह ताला ही है। ये दो आयात जो हैं अपने मौजू के एतबार से हमारे माशरे में बहुत अहम एक कलीदी जो एक इंफॉर्मेशन जो है वो हमें बताती हैं। तो लिहाजा हमें इनकी तरफ ख़ास तवज्जो रखने की ज़रूरत है। सूरह शूरा की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और किसी बुराई का बदला उसकी मिसल एक बुराई है। किसी बुराई का बदला लेना भी दर हकीकत बुराई ही है, लेकिन वो उस हद तक बदला ले सकता है जहां तक तुम्हारे साथ जुल्म हुआ उससे ज्यादा हो गया, तो वो बुराई जो है वो काउंट होना शुरू हो जाए। मगर उस आयत में आगे है, मगर जो माफ़ कर दे और इस्लाह कर ले तो अल्लाह ताला उसका अजर देगा, या उसका अजर जो है वो अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। एक रिवायत भी अगर हम देखें सही मुस्लिम से,
हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने से माल कम नहीं होता, माफ़ कर देने से अल्लाह ताला इज़्ज़त में इजाफा फरमा देता है। और जो शख्स अल्लाह ताला के लिए तवाज़े इख्तियार करे या आजिज़ी इख्तियार करे तो अल्लाह ताला उसे सरबुलंदी अता फरमा देता है। तो यानी इस हदीस के मुताबिक भी जो दूसरों को माफ़ करता है, दरगुजर करता है, तो उससे अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त में इजाफा फरमा देता है। तो माफ़ कर देना, दरगुजर कर देना, ये तो इज़्ज़त में इजाफे का बायस होता है, अल्लाह ताला की रहम और फजल का बायस बनता है। तो लिहाजा जहाँ मुमकिन हो हम ऐसे मामलात को माफ़ कर दें तो वही ज़रूरी है। लेकिन ये हमारे लिए अहम नुक्ता है, उन रिवायात की निस्बत से हम देखते हैं कि कोई बुराई को फैलने से रोकने के लिए या दूसरों तक उस जुल्म और ज्यादती का दायरा पहुंचने से पहले हम मारूफ तरीके से मुनासिब इकदाम करके उसका अगर बुराई को रोक सकें तो उसके बारे में हमें इकदाम जो हैं वो करने चाहिए। इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिल्लाहि। अब आगे अगली दो आयात जो हैं वो काफिरों के बारे में, यहूद और नसारा के बारे में बतौर ख़ास हैं, जो कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। तो इसमें यहूद और नसारा बतौर ख़ास यहूदी जो हैं वो इस इन आयात का मुखातब हैं। मगर आम तौर पर दूसरे लोग जो हैं जो भी इस ब्रैकेट में अपने आप को फील करें तो उनको भी एहसास होना चाहिए कि हमें इस ब्रैकेट से अपने आप को निकालना है। अ, यहूदियों और ईसाइयों के बारे में इससे पहले तज़किरा हुआ, गालिबन एक दो दिन पहले, एक दो मजलिस पहले, कि यहूदी और ईसाई वो कौम है जिन्होंने अपने नबियों की तस्दीक की और जिन्होंने अपने नबियों का इनकार किया। बतौर ख़ास यहूदी जो हैं, यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में बहुत सारे अल्लाह ताला की तरफ से मोजज़ात है, वो सारे के सारे मोजज़ात जो हैं वो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखे, किस तरह से फ़िरौन से निजात मिली उनको। ये एक बहुत बड़ा मोजज़ा था। और फ़िरौन के में जब मौजूद थे मिस्र में बनी इसराइल भी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी, तो उस वक़्त के सारे हालात और वाक़यात जो हैं वो भी बहुत बड़ी आंख खोलने वाली एक मंजर थे उनके सामने। लेकिन जब वो वहाँ से निकले तो उन्होंने हज़रत मूसा के बहुत सारे मामलात में उनकी नाफरमानी की, जिसके नतीजे में उनके ऊपर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ औक़ात में उनको सज़ाएँ भी दी। फिर उन्होंने माफ़ी की, वापस वादे किए, अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया, फिर दूसरी करी। यही सिलसिला या यही तज़किरा जो है वो हमें अगली आयत में, आज के सबक के, आज के रुकू के अगली आयत में या उसके बाद आने वाला जो रुकू है उसमें मिलेंगी। इसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उन्होंने ईमान तो लाए लेकिन मुख्तलिफ अंदाज से नाफरमानियाँ करते रहे। लेकिन हज़रत मूसा के बाद फिर किसी नबी पर वो ईमान लाते, किसी का इनकार कर देते। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के ऊपर पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, फिर बाद में वो ईमान ले आए। लेकिन फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार कर दिया। इसी तरह से ईसाई जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आने के बाद ईसाइयों ने हज़रत मूसा, हज़रत ईसा या इससे पहले नबियों को तो इकरार किया, माना, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका इनकार कर दिया। गोया कि उन्होंने रसूलों का इनकार किया, और रसूलों और अल्लाह के, वो कहते हैं कि अल्लाह जो है उसको तो हम मानते हैं लेकिन फलां रसूल को हम मानते हैं और फलां को नहीं मानते। अपनी मनमानी करते हैं, अल्लाह और रसूलों के दरमियान फ़र्क करते हैं। और किसको मानना है या किसके ऊपर ईमान लाना है और किसका इनकार करना है, वो अपने रास्ते जो हैं वो तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो दर हकीकत आज की दो आयत जो हैं इसमें तो सिर्फ इतना सा ही कवर है, लेकिन अगला सबक जो है उसमें मज़ीद तफसील जो है वो आएगी। उसके तमहीद में बनी इसराइल की पूरी स्टोरी जो है वो हमारे सामने जहनों में आती है। गालिबन यही वजह थी कि हमने जब बनी इसराइल का तज़किरा शुरू हुआ था सूरह बकरा में, तो हमने पूरी हिस्ट्री को एक मजलिस में समझने की कोशिश की थी कि बनी इसराइल की हिस्ट्री क्या है। बहरल, इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिल्लाहि, बेशक वो लोग जो कुफर करते हैं, इनकार करते हैं अल्लाह का, व रुसुलिही, और उसके रसूलों का, व युरीदूना अन यफर्रिकू बैनल्लाहि व रुसुलिही, और वो चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क करें। व यकूलूना, और वो सब कहते हैं, नुअमिनु बिबाज़ि बिबाज़िन व नकफुरु बिबाज़िन, और किस तरह से वो अल्लाह और उसके रसूलों में फ़र्क करना चाहते हैं या करते हैं। यकूलूना, ये कहते हुए, नुमिनु बिबाज़िन व नकफुरु बिबाज़िन, कि हम किसी पर तो ईमान लाते हैं, किसी रसूल पर, और किसी रसूल को तो हम नहीं मानते, उनका इनकार करते हैं। वह युरीदूना, और वो ये चाहते हैं कि अन यत्तखिदू, कि हम बनाएं
हम पकड़ें बैन ज़ालिका सबीला, उसके दरमियान कोई रास्ता, यानी हम अपनी मर्जी का कोई रास्ता चुन लें, हम अपनी मनमानी करें, जिसको हम दिल करें कोई नबी को तस्लीम करें, रसूल तस्लीम करें, जिसका दिल करे हम इनकार कर दें, हमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो। इस तरह से इस अपने इस तरह के कुफर की वजह से वो अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करते हैं, और कुफर का अपने लिए दरवाज़ा जो है वो खोलते हैं। उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, दर हकीकत यही हकीकी तौर पर काफिर हैं। उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, यही वही हैं हकीकी तौर पर जो काफिर हैं। हकीकी कुफर तो यही है कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल का या उसके रसूलों का कुफर किया, इनकार किया। वह आतदना लिल काफिरीन अज़ाब मुहीना, और हमने तैयार कर रखी है ऐसे काफिरों के लिए जिल्लत अमेज अजाब, या रसवाई वाला अजाब जो है वो ऐसे काफिरों के लिए तैयार कर रखा है। वल्लजीना आमनु बिल्लाहि, उसके बरक्स वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर, व रसूलिही, और उसके रसूलों पर, वलम युफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम, और नहीं फर्क किया उन्होंने किसी के भी दरमियान उनमें से, यानी उन रसूलों के ऊपर, सब के सब रसूलों के ऊपर ईमान लाए, किसी रसूल का उन्होंने इनकार नहीं किया। अल्लाह पर भी ईमान लाए, और अल्लाह के जितने रसूल आए उन रसूलों पर भी ईमान लाए। उलाइका सौफ युअतीहिम उजूरहुम, यही वो लोग हैं कि अनकरीब उन्हें उनके अजर देगा अल्लाह ताला। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, और बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। इन दो तीन आयात जो है, इनको अगर हम सामने रखें तो ये एक अकीदा जो है वो जो पाया जाता है कि अल्लाह पर जो ईमान ले आए, बस अल्लाह ताला तो उसको माफ़ कर देगा। कोई नबियों पर ईमान लाना ज़रूरी है। उनके इस अकीदे की या उनके इस नज़रिए की ज़र्ब है उसके ऊपर, या उसका खुले तौर पर रद्द है इन दो तीन आयात में, कि जिसने अल्लाह और रसूल, इसके बारे में तज़किरा एक दो दफ़ा और पैसे हुआ कि तौहीद को पहचानने का, या अल्लाह की वहदानियत को सही मानों में उसकी मार्फत हासिल करने का वाहिद ज़रिया हमारे पास उसके रसूलों की तालीमात हैं। और आज के दौर में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनकी तालीमात और उनकी हदीस और कुरान और सुन्नत जो है, वही हमारे लिए वाहिद रास्ता है कि हम तौहीद को पहचान सकें, और उसके मुताबिक फिर अल्लाह ताला के शिरक से, अल्लाह ताला के साथ शिरक से बच सकें। तो लिहाजा रसूल का इनकार करना दर हकीकत तौहीद की असल रूह जो है उसको पहचानने से इनकार करना है, जो कि मुमकिन नहीं। अल्लाह और उसके रसूल दोनों को बैक वक्त उसका इकरार करना और उनके ऊपर ईमान लाना, ये लाज़िमुल मलज़ूम है। इसके बगैर हमारा छुटकारा मुमकिन नहीं है। तो इसी नज़रिए को सपोर्ट करती हैं ये तीन आयात, और इस नज़रिए के खिलाफ जो कुछ बातें घड़ते हैं उनको वो कारी ज़र्ब लगाकर उनको रद्द करती हैं कि नहीं, सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाना काफ़ी नहीं, उसके साथ उसके रसूलों पर भी ईमान लाना जो है वो लाज़िम व मलज़ूम है। वगरना हकीकी काफर तो ये हैं जो अल्लाह और उसके रसूलों में फ़र्क करते हैं, और दोनों में तफरीक करते हुए अपनी मनमानी से किसी को मान लिया और किसी को नहीं माना। ऐसे लोगों के लिए फिर जिल्लत अमेज़ अजाब भी है। हाँ, अलबत्ता जिसने ये फ़र्क नहीं किया, तो ऐसे लोग जो हैं उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा अजर भी है, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान भी है। यहीं पर हमारा आज का सबक भी मुकम्मल होता है, इस दुआ के साथ कि हमने जो आज बातें समझने की कोशिश की, सही मानों में उसकी फ़हम जो है अल्लाह ताला हमारे दिलों में उतार कर हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, इसके साथ ही इजाज़त भी चाहते हैं, सबको दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, हमारे मामलात में अल्लाह ताला अपनी ख़ास मदद और ख़ास रहनुमाई फरमाए। हमारे रोज़मर्रा के मामलात में, हमारे कारोबार, हमारी जॉब्स, हमारी फैमिली, हमारे बच्चों, हमारे बुज़ुर्गों की, हमारी सेहत के बारे में, हमारे दीगर या रोज़मर्रा के मामूलात में अल्लाह ताला अपनी ख़ास मदद, ख़ास रहमत, ख़ास रहनुमाई और ख़ास फजल करम हमें अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम उसके बेशुमार नेमतें, बेशुमार अल्लाह ताला के फजल करम जो है उसका फ़ायदा हम दुनिया से उठाते हैं। एक तो अल्लाह ताला हमें शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और फिर इन नेमतों से दुनिया के साथ साथ अल्लाह ताला हमें आखिरत कमाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार।
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.